Hello my dear viewers and my dear friends, my name is Bittu and today we are going to discuss about an important chapter which is freedom. It is a theoretical chapter, so now let's get started. It is very important for your UPSC CSC examinations. So let's take the case of freedom in the South Africa. What was the deal about it? What was the meaning about the freedom in it? So in South Africa, Nelson Mandela overcome as a very popular leader across the past time. He is also national inspiration as well as international inspiration for many of the people now, right now. But Nelson Mandela was such a great leader that he survived for a 28 years. It is a very long period of time in solitary confinement in a jail because at that time Africa was suffering from the problem of apartheid. It was a racial discrimination or segregation system in which the black colored people were segregated from the white colored people. It was came under the rule of we can say European culture or in the British colony, but it was a very bad system. Also, Nelson Mandela pays a very high rate of his personal life for this liberty. An interesting fact is that, my friends, the person who catch up the Nelson Mandela and means arrested him in past after being a president of South Africa, when he was delivering his speech. During his speech, he says that means the people who arrested me now giving me salute. So it was a very proud moment for him and we have to appreciate it. Now freedom means the what does the freedom means to Nelson Mandela? When he was a small kid, he used to play in fields, he used to run. So at a small age, he was thinking that it is the freedom. But as he grew up and he gained the knowledge, he understand the living condition of his country. After then, he realized that it is not the real freedom. So he struggled for freedom. The next case is from Myanmar of Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi was a very famous leader. We can say is a very famous leader from Myanmar. When there was a military dictatorship rule in Myanmar, Aung San Suu Kyi's husband was treated in England because he was suffering from the cancer. Aung San Suu Kyi could go to England and just take care of her husband, but she did like this because she thought that if she will go to England, then she would not pay attention for the freedom of her country. And one thing is that he was very inspired from Mahatma Gandhi's thoughts. So in her book Freedom from Fear, she mentioned that the real freedom is that when an individual overcomes from fear. If an individual fails in it, he or she cannot live a well dignified human life. So it was very important that you should take a well dignified human life for making freedom, for realizing the real meaning of freedom. So we have investigated two cases of the freedom across across our country. Once more, our country, India, we know that what was the struggle, what was the era of independence before 1947. So we all know that what was the case of freedom, or we can say freedom for the struggle and struggle for our freedom. What was the case? We all know that. Now later moving on, so we have to know that what is real meaning of freedom. So the real meaning of freedom is to live with the absence of constraints. So now what is constraints? Constraints dignifies, or it means the restrictions, the unlawful restriction that a colonial or an external person or an individual means we can say forcefully restricts on an individual. It is known as constraints. So the first dimension, there are 2 to 3 dimensions of freedom. So in the first dimension, constraints leads to the what means freedom leads to the absence of constraints for the people. It is the first dimension. So the second dimension of freedom is that in a freedom society, or we can say in a free society, there is an equal chance for each and everyone to make their potential on a higher level to being expressed for them, so that they can express, they can tell a feeling freely. So this is the second dimension.
And the third dimension is that if a person want to express him or herself, if he or she want to show her capabilities, capacities or abilities, if he or she want to develop creativity, then he or she have the right to do it. It is the meaning, it is the real meaning of freedom. So why the freedom is meaning valuable? Freedom is meaning valuable because it allows us to make our own choice, to express ourselves, to say, to speech, to deliver a speech, to send a message, because it is a fundamental thing. If you will not get a freedom, why are you living in such a bad condition? सो अगर आपको फ्रीडम ही नहीं मिलेगा तो आपके पास रहा क्या गुलाम बन के जियोगे? सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग. सो एवरीवन हैज द राइट टू गेट इट. एंड यस, in our article, in our constitution, it has been given. I have also delivered a lecture on it. You can also watch in my YouTube channel. But my friends, there is a very interesting turn that in a society there are some constraints, there are some restrictions, but they are lawful and reasonable. कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं हो सकता है. देयर इज नो एनी सोसाइटी प्रेजेंट दैट इज मेंटेनिंग इट्स इकोसिस्टम विदाउट कॉन्स्टेंट्स. अगर कॉन्स्टेंट्स रहेगा ही नहीं तो आप कैसे मेंटेन करोगे? अगर आप एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी चाहते हो जहां पर लोग अच्छे से रहे, पीसफुली रहे, लॉफुली रहे, जहां पर लोगों को हक हो अपने लीडर को चुनने का, तो उसके लिए भी आपको कॉन्स्टेंट चाहिए, एक वेल डिग्निफाइड सिस्टम चाहिए. सो सच सिस्टम, सच रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड. जो ये इम्पोज है ना, वो लोगों के फेथ के लिए, फिर लोगों के भलाई के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक सोसाइटी मान के चलो, वहाँ पर अगर कॉन्स्टेंट्स ना हो तो क्या होगा ये मैं बताता हूँ आपको. जैसे एक पार्किंग है, वो पार्किंग सिर्फ वो पार्किंग क्या है ना कि सारे पार्किंग में गाड़ियाँ फुल हो चुकी, बस एक ही जगह है. अगर वहाँ पर दो गाड़ियाँ आ गई, अब वो दोनों में से कौन पार्क करेगा, इसके ऊपर लेके लड़ाई होने लगा और लड़ाई रुक ही नहीं रहता, तब क्या होगा? अगर कॉन्स्टेंट्स रहेगा नहीं, रिस्ट्रिक्शंस रहेगा ही नहीं, कोई टाइमिंग रहेगा ही नहीं, पीरियड रहेगा ही नहीं, कुछ मतलब एक होता है ना, जैसे मैंने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके, तो कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स भी चाहिए ताकि लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सके गलत काम होने पर. तो उसके लिए कॉन्स्टेंट्स चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, ताकि उनको पीसफुली सुलझाया जा सके. लेकिन अनलॉफुल कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ना, ये मे बी इम्पोज्ड बाय फोर्स और दे बी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट. ये कुछ देशों में गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकते हैं और कुछ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी हो सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ 1947 के पहले हमारे यहाँ यूरोपियन कॉलोनी आई थी, बहुत सारे, फ्रेंच के भी, ब्रिटिश के भी, इंग्लैंड के भी, तो डच के भी, तो बहुत सारे कॉलोनी यहाँ पर आई थी और वो हमारे पर फोर्सफुली राज कर रही थी. तो वो कॉन्स्टेंट्स जस्टिफाइड नहीं था, वो कोई रीजनेबल नहीं था, तो वो गलत था. और बाद में क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की गवर्नमेंट थी, तो बहुत सारे से अनलॉफुल एक्ट या फिर लॉ पास किए जो कि हमारे हक में नहीं थे. तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना, ये अनलॉफुल है, अनरीजनेबल है, ये गलत है. ये इसी तरह के कॉन्स्टेंट्स हमें देखने को मिले साउथ अफ्रीका में और इवन हमारे कंट्री में, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था. लेकिन सवाल उठता है कि हमें कॉन्स्टेंट्स आखिर चाहिए क्यों? हमें कॉन्स्टेंट्स की जरूरत है क्या बिना कॉन्स्टेंट्स के मतलब जो मसला है वो सुलझ नहीं सकता? सो माय फ्रेंड्स, एवरी सोसाइटी नीड्स सम कॉन्स्टेंट्स, बट अ फ्री सोसाइटी मिनिमाइज इज टू मिनिमम लेवल. एक फ्री सोसाइटी इसको मिनिमम लेवल तक मिनिमाइज करती है, मतलब कम से कम इतना मिनिमाइज करती है कि आप हक से जी सको. सो हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स चाहिए ही रहते हैं, नहीं तो लोग अपने आप में मतलब चावस करने लगेंगे, मतलब डिस्प्यूट करने लगेंगे, लड़ने झगड़ने लगेंगे, बहुत सारा डिस्प्यूट होने लगेगा. जैसे मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ, मिल की है, जॉन स्टुअर्ट मिल की, जो एक पॉलिटिकल थ्योरेटिकल एनालिसिस थे ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि बहुत साल पहले के अभी से. सो उनका ये मानना था ना कि एक हार्म इफेक्ट होता है, ठीक है, हार्म प्रिंसिपल, इसके बारे में हम लोग जानते हैं. वो मानना था कि जो इंडिविजुअल के द्वारा लिए गए एक्शन होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं. पहला एक्शन वो होता है जिसमें वो सिर्फ खुद को इफेक्ट करता है. दूसरा एक्शन वो होता है जो उसके काम के चलते पूरा सोसाइटी इफेक्ट होता है. जैसे अगर मैं डिसीजन लूँ कि मेरे को IAS बनना है, तो ये मेरा डिसीजन है, इसमें दूसरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, दूसरा कोई मेरे इस डिसीजन में ये नहीं बोल सकता नहीं
ये तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या फिर जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट लाना रहता है तो पहले पूरा पार्लियामेंट में बहस छिड़ता है। अब मेरे को आईएएस बनना है तो थोड़ी ना पार्लियामेंट पूरा डिस्कस करके बिट्टू कुमार को आईएएस बनना है, ये बनना है, इसको नहीं बनना चाहिए, ये लॉ पास कर दो, इसको ये बनने ही नहीं देंगे। ये नहीं होता। ये दिस इज माई पर्सनल लिबर्टी, ये मेरा नेगेटिव लिबर्टी है, ये मेरा हक है, ये मैं इसको रखूंगा, लेकिन इससे कोई सोसाइटी में इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये होता है जब मेरे कारणों से, मेरे काम के कारणों से देयर विल बी अ नेगेटिव और वी कैन से देयर विल बी एन इफेक्ट ऑन सोसाइटी। सो ये कैसे, इसको एग्जांपल में हम समझते हैं। अगर मैंने कचरा फेंक दिया रोड पर, या फिर मैंने समझ लीजिए कि मैंने कुछ पत्थर उठाए, मैंने उसको काम किया, फिर रोड पर रख दिया, हो सकता है उससे बाद में जाके एक्सीडेंट हो जाए। हो सकता है अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया, उससे इन्वायरमेंट पर बैड इफेक्ट पड़े, या फिर उससे जो पब्लिक है ना वो डिस्टर्ब हो, तो उससे मेरे काम की वजह से पूरा अगर सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो अब उस केस में क्या करोगे आप? तब आपको तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे ना, कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे ना। अगर रेड लाइट में मैं गाड़ी पास कर दूं तो मेरे चलते एक्सीडेंट भी हो सकता है, दूसरों का जान भी तो जा सकता है। इसीलिए तो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि रेड लाइट में आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो यही होता है कॉन्स्टेंट्स, लेकिन ये रीजनेबल होते हैं, ये जस्टिफिकेबल होते हैं। ऐसे कॉन्स्टेंट्स लगाए जाते हैं ना जिस पे आप रीजन दे सको, जिस पर आप सपोर्ट कर सको, और जो ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो लॉफुल होते हैं, ऐसे कॉन्स्टेंट्स लगाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कुछ भी काम गलत कर दो या फिर जिससे इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़े तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर आप अपने घर पर डीजे वगैरह बजा रहे हो, लाउड स्पीकर बजा रहे हो रात के 10 बजे के बाद, तब आप क्या करो ना, आपके इस काम की वजह से इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, आपके इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है, ये तो है। लेकिन अब इसके लिए आपको उम्र कैद तो नहीं हो जाएगा ना, इसके लिए आपको फांसी तो नहीं होगी ना। तो कॉन्स्टेंट्स में भी एक ऐसा नियम है कि आपको इंडिविजुअल के एक्ट ऑफ लेवल पर जाके आपको डिसीजन लेना होगा, लेकिन यानी कि वो किस तरह का काम किया, उससे क्या इफेक्ट हुआ है। तो जब लाइट होता है या फिर कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए एज वी पब्लिक, हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए उस केस में, हमें सोशल डिसअप्रूवल करना चाहिए, यानी कि सभी कोई को डिसअप्रूवल, जैसे कि मैं इस पर डिसअप्रूवल करता हूँ, मैं इसको नहीं मानता हूँ, सो वी नीड टू डू सच डिसअप्रूवल। नहीं तो क्या होगा ना, इससे लोगों में कोऑर्डिनेशन की कमी आएगी, क्योंकि इस तरह का मिस्टेक मतलब सभी कोई तो करते रहते हैं। जैसे अगर किसी ने कचरा फेंक दिया तो क्या मैं उसके लिए फांसी दे दूंगा? नहीं, मैं उसको मैं बोलूंगा, समझाऊंगा, एक डिसअप्रूवल दूंगा कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ही होते हैं रीजनेबल कॉन्स्टेंट्स, यानी कि उसके पीछे एक रीजन दे सके, उसके पीछे कैपेबिलिटी हो कि वो आपने वो रीजन दिया तो एक चीज के लिए दिया, एक स्पेसिफिक चीज के लिए। अब आगे हम लोग चलते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की। तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि आपको हक है, आप जो काम करो उस काम को करने का हक आपको दिया जाता है, यानी कि आपको आज़ादी सिंपली दिया जाता है। सो लिबर्टी का आप देखते हैं नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है। सो नेगेटिव लिबर्टी वो होता है ना जिसमें इफ यू आर एन इंडिविजुअल, सो यू हैव एन एरिया इन विच नो वन विल बी इंटरफेयर्ड विथ योर डिसीजन। आप किसी को अपने काम में, अपने किसी में इन्वॉल्व नहीं करोगे। नो वन विल बी इनवियोलेबल इन योर डिसीजन, इन योर वर्क्स। सो इट इज नेगेटिव लिबर्टी। So negative liberty, why it is important? Because it is such a fundamental space. So इसको ऐसे समझो ना कि अगर आपके पास इतना भी स्पेस नहीं लगेगा, अगर नेगेटिव लिबर्टी आपके पास ना हो, अगर आपके पास इतना भी हक ना हो कि आप खुद से अकेले डिसीजन ले सको, तो फिर फ्रीडम आएगा कहाँ से? बिकॉज फ्रीडम एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, और ये फ्रीडम है ना, दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी विच अ इंडिविजुअल हैव। सो एवरी इंडिविजुअल हैव नेगेटिव लिबर्टी। सो लेकिन ये नेगेटिव लिबर्टी का स्पेस कितना होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, इस पर डिस्कशन चलते रहता है हमारे पार्लियामेंट में, इस पर डिस्कशन चलते रहता है। जिससे अगर मेरे पास सर्टेन स्पेस है कि मैं ये सोच सकूं, मैं ये कर सकूं, मैं खुद से खाना खा सकूं, ये सब तो बेसिक चीज़ है ना, इसमें तो कोई बताएगा नहीं। तो दिस इज माई पर्सनल थिंग्स एंड नो वन विल बी इनवियोलेबल और नो वन विल बी डू एनी थिंग ऑफ मैटर इन माई मैटर। मतलब वो अपना कुछ काम नहीं कर सकता मेरे मैटर में, अपना कोई भी तरह से वो मेरे मैटर में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव लिबर्टी।
नॉन इंटरफेरेंस सिस्टम है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये इनवायलेबल और नॉन इंटरफेरेंस सिस्टम है, यानी कि इसमें कोई दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन इसका भी कुछ ये है कि आपको कितना जगह दिया जाएगा, उसके लिए कितना स्पेस, आप किस किस के चीज़ के लिए आप नेगेटिव लिबर्टी ले रहे हो, इस पर डिस्कशन चलते रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आता है पॉजिटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज कि अगर आप एक सोसाइटी में हो ना, तो आप अपने सोसाइटी में एज अ इंडिविजुअल कुछ ऐसा वर्क प्रमोट करो जिससे उस पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। मतलब आप अपने सोसाइटी में जा करके कुछ ऐसा चीज़ करो ना जिससे आप खुद तो डेवलप हो रहे हो और साथ ही साथ सोसाइटी में भी डेवलपमेंट आ रहा है। ये डेवलपमेंट को इनेबल करने का एक सिस्टम है। जैसे एक पूरा सोसाइटी, उसमें 5 लोग रहते हैं, अगर आप अपने आप को डेवलप करोगे, इसी तरह 4 लोग और डेवलप करेंगे ना, तो पूरा सोसाइटी भी डेवलप होगा। और ये चीज़ है ना कि नेगेटिव लिबर्टी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिल ने कहा था कि पर्सनल चीज़ वो खुद से कर सकता है, उसका हार्म उसको खुद पर होगा। तो नेगेटिव लिबर्टी में एक चीज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट है ना कि वो अपना इफेक्ट जो भी करे उसका अंजाम वो खुद भुगतेगा। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और इसलिए होते हैं क्योंकि इससे पूरा सोसाइटी पर मतलब इफेक्ट पड़ेगा। और मैंने जैसे बताया कि जब पूरा सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स लागू होते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी चीज़ को दिखाने की या दर्शाने की हमें हक है, और दिस इज अ फंडामेंटल एक्सप्रेशन। तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द, वी कैन से द फंडामेंटल चैम्बर फॉर द नेगेटिव लिबर्टी। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरे पास हक है कि मैं आपको समझा सकूं, मेरे पास हक है कि मैं दर्शा सकूं, मैं डिसएग्री हूं, डिसअप्रूव्ड हूं कोई भी डिसीजन से, ये मेरे पास हक है। इट इज अ fundamental value that a society must willing to bear in some inconvenience to protect it from people who want to restrict it। यानी कि ये एक फंडामेंटल चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई चीज़ लॉ मनवाना है, या फिर अगर आप एक डिसीजन निकाले थे गवर्नमेंट, अगर आप उससे डिसअप्रूव्ड हो, तो आपके पास ये हक है कि आप एक्सप्रेस कर सको कि नहीं, मैं इससे डिसअप्रूव्ड हूँ, मैं इंडिविजुअली पर्सनली, बाकी लोगों को फर्क पड़े या ना पड़े, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये मेरे नेगेटिव लिबर्टी के अंदर आता है, तो इसका इम्पैक्ट मेरे पर पड़ रहा है, इसीलिए मैं दर्शाऊंगा कि मैं इससे डिसअप्रूव्ड हूँ। एंड दैट इज योर राइट फॉर एक्सप्रेशन, क्योंकि इससे आपके गोल्स पर हो सकता है इफेक्ट पड़े, इससे आपके एम्बिशंस पर हो सकता है इफेक्ट पड़े। लेकिन याद रखना, आप नेगेटिव लिबर्टी में जो भी करो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। ये था हमारा लास्ट टॉपिक विच इज़ नेगेटिव लिबर्टी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और आगे भी ज्योग्राफी की वीडियो आते रहेंगी। सो थैंक यू।